السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، آپ اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ جو بھی طلباء و طالبات ٹی ایس ٹیٹ یا پھر اے پی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ آج ہم جماعت سوم سے ماحولیاتی مطالعہ یعنی انوائرمنٹل اسٹڈیز کے 2 اسباق کے بارے میں ہم جانیں گے، کیونکہ ٹیٹ امتحان میں جماعت سوم سے 3 سوالات یا 5 سوالات پچھلے امتحانات میں کیے جا چکے ہیں، اس لیے ہم جماعت سوم کی ای وی ایس ماحولیاتی مطالعے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ٹی ایس ٹیٹ 2017 میں پودوں سے متعلق پلانٹ سے ریلیٹڈ جملہ 5 سوالات کیے گئے ہیں، پوچھے گئے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ان اسباق سے یعنی ابھی ہم جو بات کریں گے سمجھیں گے، ان اسباقوں میں سے 2 سوالات کیے گئے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سبق یعنی اس ویڈیو کا اور ماحولیاتی مطالعہ انوائرمنٹل اسٹڈی سے 5واں سبق، ہمارے اطراف و اکناف میں پائے جانے والے پودے۔ اور ہم اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرے سبق کو بھی جوڑ لیں گے، کیونکہ بہت ہی آسان سبق ہے اور سمجھنے میں بھی آسانی دی گئی ہے، اس لیے ہم دوسرے سبق کو بھی جوڑتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر پتوں سے رشتہ، اگر آپ کے پاس پرانی بک ہے تو اس میں دیکھیں پودوں سے تعلق، یہ ہو گیا ہمارا 6واں سبق۔ تو ہم اس ویڈیو میں 2 اسباقوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں پہلا سوال، سڑک کے کنارے اگائے جانے والے پودے کون کون سے ہیں؟ دوستو میں آپ کو بتا دوں، ویسے تو بہت سارے پودے ہیں جو سڑک کے کنارے اگائے جاتے ہیں، جن کی ٹہنیاں زیادہ ہوتی ہیں، پتے زیادہ ہوتے ہیں، وہی پودے سڑک کے کنارے اگائے جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، سڑک کے کنارے پودے اگائے جانے کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات دیکھیں، سڑک کے کنارے جو پودے اگائے جاتے ہیں اس کی وجوہات یہ ہے کہ مسافروں کو دھوپ کی تمازت سے بچایا جائے۔ مسافروں کے لیے یہ پودے راحت کا کام کرتے ہیں۔ تو سوال ہمارا یہ تھا کہ سڑک کے کنارے اگائے جانے والے پودے کون سے ہیں؟ تو ہم نے آپ سے یہی کہا کہ ویسے تو سڑک کے کنارے بہت سارے پودے اگائے جاتے ہیں، لیکن بک میں جن پودوں کا ذکر کیا گیا ہے، کتاب میں جن پودوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ دیکھیں گے ہم۔ سڑک کے کنارے جو پودے اگائے جاتے ہیں، برگد، املی اور نیم کے پودے، جس کا ذکر 3 جماعت کی ای وی ایس کی بک کے اندر کیا گیا ہے۔ تو چلیے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیں، صحرائی پودے کون کون سے ہیں؟ یا پھر اس طریقے سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، صحرائی پودا کون سا ہے؟ دوستو یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ یہ سوال 2017 کے ٹیٹ میں پوچھا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس 2017 کا ٹیٹ کوشچنز پیپر ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اب ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہوگا کہ صحرا کسے کہتے ہیں، صحرا سے مراد کیا ہے۔ صحرا ریگستانی علاقے کو کہتے ہیں جہاں پر ریت پائی جاتی ہے۔ تو دوستو دیکھیں صحرائی پودے کون سے ہیں؟ ناگ پھنی، گھیگورا اور چپل سینڈ، ان پودوں کو صحرائی پودے کہتے ہیں۔
या फिर इन पौधों को रेगिस्तानी पौधे कहते हैं। आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। तो चलिए हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। आबी पौधे किसे कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है और बहुत सारे तुलबा और तालिबात आसानी से जान भी गए हैं और जवाब भी मालूम होगा, लेकिन मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ। आप किसे कहते हैं हमें पहले ये समझना होगा। तो दोस्तों आब हम पानी को कहते हैं। आब से मुराद पानी। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि आबी पौधे कौन कौन से हैं, यानी पानी में उगने वाले पौधे कौन से हैं। तो देखें वो पौधे कौन कौन से हैं। कमल, लिली। आप इसको भी अच्छे से जहन में रखें। अगर आपको इम्तिहान में पूछे कि आबी पौधा इसमें से कौन सा है, अगर वहाँ पर 3 ऑप्शन कोई और दे दिए जाएं, 3 पौधों के नाम कोई और दे दिए जाएं और वहाँ पर एक नाम कमल नज़र आए, तो आप कमल को चुनेंगे। या फिर कमल के बजाय अगर वहाँ पर लिली दे दिया जाए तो आप लिली को चुनेंगे, यानी लिली को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये भी सवाल 2017 के टेट में पूछा गया है। अगर आपके पास 2017 का टेट पेपर है, क्वेश्चंस पेपर, आप उसमें देख सकते हैं कि ये भी सवाल उसमें पूछा गया है। उसके बाद हम जानेंगे पत्तों के अक़साम के बारे में। दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि कुछ पत्ते मुलायम होते हैं, कुछ पत्ते नोकीलेदार होते हैं और कुछ पत्ते चौड़े होते हैं और कुछ पत्ते छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सवाल किया गया है, देखें, झोपड़ी की छत बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्ते कौन से हैं? जो भी तुलबा और तालिबात शहरी इलाकों में रहते हैं वो इस बात से नावाकिफ होते हैं कि झोपड़ी किसे कहते हैं। दोस्तों अगर आपके पास जमाते सुव्वम की किताब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बुक अगर है तो आप उसमें देख सकते हैं कि झोपड़ी कैसे होती है, झोपड़ी किसे कहते हैं, या फिर आप इंटरनेट गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों जो झोपड़ी की छत बनाने के लिए जिस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, ताड़ के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। और एक ख़ास बात यह है कि ताड़ का जो दरख्त होता है उसकी शाखें नहीं होती। आपको ये नज़ारा, आपको ये मुशाहिदा जुनूबी हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें, खाने के बर्तन की तरह इस्तेमाल होने वाला पत्ता। शायद कई तुलबा और तालिबात इस बात को जानते भी होंगे। खाने के बर्तन के अलावा या फिर कहिए खाने के बर्तन की जगह पर जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है, जिस पत्ते का इस्तेमाल होता है, देखें वो पत्ता कौन सा है? मौस का पत्ता, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, पत्ते की जसामत बड़ी होती है, इस वजह से इस पत्ते को बर्तन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। त्योहारों के मौके पर घरों को सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्ते। दोस्तों जो हमारे बरादरान वतन है यानी हिंदू भाई हैं, ईद के मौके पर पत्तों के ज़रिए घरों को सजाते हैं, दुकानों को सजाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से पत्ते हैं। आम का पत्ता है, नारियल का पत्ता है और
केला यानी मौज का पत्ता है, जिसका जिक्र किताब में किया गया है, उसी को हम यहाँ पर बयान कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। आप देखे होंगे कि दिवाली जो त्यौहार है, ईद है, उस दिन बरादरान वतन आम के पत्ते से, नारियल के पत्ते से और मौज यानी केले के पत्ते से अपने घर को सजाते हैं, अपनी दुकानों को सजाते हैं। इसके अलावा कई और पत्ते भी होंगे, लेकिन जिन पत्तों का जिक्र किताब में किया गया है, उसी को हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो चलिए आगे देखें। खुशबू या बू वाले पत्ते कौन से हैं? यानी पत्ते की बू सूंघकर ये बताया जा सकता है कि ये पत्ता कौन सा है। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन कौन से पत्ते हैं। करियापात, कोतमीर, पुदीना, ये बहुत ही आम पत्ते हैं जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और सालन के यानी ग़िज़ा के इनका इस्तेमाल करने से जायके में इजाफा हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर किताब में यूकलिप्टस पत्ते का भी जिक्र किया गया है। तो अब यहाँ पर यूकलिप्टस कौन सा पत्ता है? नीलगिरी का पत्ता। नीलगिरी के पत्ते को ही यूकलिप्टस का पत्ता कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आपके सामने कंपोस्ट गड़े की यहाँ पर मैं तशरीह कर रहा हूँ, उसके बारे में मुकम्मल जानकारी आपको दे रहा हूँ। कंपोस्ट गड़ा किसे कहते हैं? जो दरख्त से गिरे हुए पत्ते होते हैं, मिड डे मील का जो खाना बचा हुआ होता है, वो इस कंपोस्ट गड्ढे में कुछ दिनों के लिए रखा जाता है और जो अशिया कंपोस्ट गड्ढे में डाली गई थी वो सड़ गल कर खाद बन जाती है और ये खाद मुख्तलिफ पौधों के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसी को हम कंपोस्ट गड़ा कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो अहम पॉइंट्स जो दो सबक में से यानी असबाक में से मैंने जिनका आपके सामने जिक्र किया। बहुत ही अहम पॉइंट्स है, आप इसे नोट कर कर रखें या फिर जहन नशीन कर लें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। प्रिपरेशन तैयारी करने वाले तलबा और तालिबात के लिए ये बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि आज हम जमात सुवम से 4 असबाक के अहम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखें और अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर आप देखें, पहला सबक है ख़ानदान, दूसरा सबक है कौन क्या काम करते हैं, तीसरा सबक है आओ खेलें, चौथा सबक है जानवर और इनकी पनाह गाहें। दोस्तों, आप इस बात से बेहद वाकिफ़ हैं कि प्राइमरी स्कूल में जमात सुवम से ही बच्चों को माहौलियाती मुतालिए का या कहिए माहौलियाती मुतालिए के बारे में बतलाया जाता है, बुक पढ़ाई जाती है। तो इसलिए सबक बहुत ही मुख्तसर है, तमाम असबाक बहुत ही मुख्तसर है और उसमें से जो अहम पॉइंट्स हैं वही पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप इसको अच्छे से जहन नशीन कर लें या फिर नोट करके रखें। तो दोस्तों, हम पहले सबक यानी ख़ानदान के जो भी अहम पॉइंट्स हैं, अहम नुकात हैं, उसके बारे में जानते हैं। बच्चों को समझाने के लिए इस सबक में
ایک خاندان کی منظر کشی پیش کی گئی ہے، لیکن اس سبق میں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ اگر آپ کے پاس انوائرمنٹل اسٹڈیز یعنی ماحولیاتی مطالعے کی بک ہے تو آپ صفحہ نمبر 7 پر دیکھ سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 7 پر بہت ہی اہم پوائنٹس دیا گیا ہے، وہ پوائنٹس دیکھیں کیا ہے۔ ہمیں سوال اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ اندھے جو لوگ ہیں یعنی نابینا جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک پڑھنے کا طریقہ ہے، اس طریقے کا نام کیا ہے؟ سوال اس طریقے سے ہو سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے اندھے لوگ پڑھنے کے لیے کون سے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں؟ تو دوستو اس کا جواب یہی ہے کہ جو بھی اندھے لوگ ہوتے ہیں، جو بھی نابینا اشخاص ہوتے ہیں، شخص ہوتے ہیں، وہ لوگ پڑھنے کے لیے بریل رسم الخط کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹس ہے۔ اس کے بعد اور ایک سوال اس سے پوچھا جا سکتا ہے بریل رسم الخط یا پھر رسم الخط کے موجد کون ہے، یعنی اس کو منظر عام پر لانے والے کون ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیں، اس کے جو بھی موجد ہیں اس کا نام یہاں پر دیکھیں، لوئس بریل، یعنی اندھے لوگ جو پڑھتے ہیں، پڑھنے کا طریقہ کار ہے، اس کے موجد لوئس بریل ہیں۔ اس کے بعد ماحولیاتی مطالعے بک میں صفحہ نمبر 7 کے اخیر میں ضعیف لوگوں کا اور خصوصی مراد کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ میں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے ہر سال 3 دسمبر کو دنیا بھر میں کون سا دن منایا جاتا ہے؟ سوال کو اور ایک مرتبہ دیکھیں، ہر سال 3 دسمبر کو دنیا بھر میں یہ دن منایا جاتا ہے یا پھر کون سا دن منایا جاتا ہے؟ تو جواب دیکھیں، ہر سال 3 دسمبر کو دنیا بھر میں مختلف صلاحیتوں کے حامل اشخاص کا دن منایا جاتا ہے۔ اگر ہم انگلش میں دیکھیں ڈیفرنٹلی ایبلڈ پرسن ڈے منایا جاتا ہے۔ سوال اس طریقے سے بھی کیا جاتا ہے کہ مختلف صلاحیتوں کے حامل اشخاص کا دن یا پھر ڈیفرنٹلی ایبلڈ پرسن ڈے کس دن منایا جاتا ہے؟ سوال ہمیں اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر پہلے میں نے جس طریقے سے آپ کے سامنے رکھا اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ 3 دسمبر کو بھی یاد رکھنا ہوگا اور جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ پرسن ہوتے ہیں اس کو بھی یاد رکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس بارے میں بتایا تھا کہ ضعیف لوگ اور خصوصی مراد کے مستحق بچے، یہ خاندان سبق کی مین ہیڈنگ ہے، اس میں ہی یہ اہم پوائنٹس ہیں۔ اس کے ساتھ میں اور ایک اہم پوائنٹس ہے جو ہمارے سامنے یہ ہے، ہر سال اکتوبر کی پہلی تاریخ کو یعنی 1 اکتوبر کو کون سا دن منایا جاتا ہے؟ تو جو مین اہم ہیڈنگس ہے وہ پڑھتے ہی ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہم نے مین ہیڈنگس یہی پڑھا، ضعیف لوگ اور خصوصی مراد کے مستحق بچے۔ تو دنیا بھر میں 1 اکتوبر کو یعنی پہلے ہمیں اس بات کو اچھے سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ 3 دسمبر کو دنیا بھر میں ڈیفرنٹلی ایبلڈ پرسن ڈے منایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر سال کی اکتوبر کی پہلی تاریخ کو دنیا بھر میں یعنی انٹرنیشنل لیول پر یوم معمرین دن منایا جاتا ہے۔ یا پھر سوال اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، یوم معمرین دن کس دن منایا جاتا ہے؟ اگر آپشن میں کوئی 3 اور آپشن دے دیے جائے اور وہاں پر ایک آپشن 1 اکتوبر رہے تو آپ 1 اکتوبر کو سلیکٹ کریں گے۔ تو یہ تھے پہلے سبق یعنی خاندان سبق جو ہے اس کے اہم پوائنٹس۔ اب ہم دوسرے سبق سے اہم پوائنٹ جانیں گے، کون کیا کام کرتے ہیں۔ دوسرا سبق ہمارا یہ رہا، تو دیکھیں بہت ہی مختصر اہم پوائنٹس 2 یا 3 نکل کر آتے ہیں۔ اس سبق میں صفحہ نمبر 15 پر جو مہارتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اہم پوائنٹس نہ ہو، پھر بھی آپ اس کو ذہن میں رکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے سوال کہاں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 15 پر یہ بتلایا گیا ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام شانتا ہے، اور جو وہ کام کو انجام دیتی ہے
उसका काम है कि टोकरी बुनना, और दूसरा शख्स उसके बाजू में बैठा हुआ है यानी बाजू में दिया गया है, उसका नाम राजू है और उसका काम है चप्पल सीना। उसके बाद तीसरा शख्स है वहाँ पर, उसका नाम रवि है और इसका काम है हजामत करना। उसके बाद चौथा शख्स है रामू और उसका काम है बढ़ाई का काम करना। ये उतने अहम पॉइंट्स भी नहीं है लेकिन फिर भी याद रखें। उसके बाद हम तीसरे सबक की जानिब बढ़ते हैं। तीसरे सबक में बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। तो तीसरा सबक देखें, आओ खेलें। आओ खेलें सबक में बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के खेल के बारे में बतलाया गया है और उसूल और ज़ाब्ते जो भी हैं उसके बारे में बतलाया गया है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसे खेल का जिक्र किया गया है जो बहुत ही अहम है। बहुत सारे खेल हैं जो मुख्तलिफ खेल आदमियों के ज़रिए या कोई और चीज़ों के ज़रिए खेले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खेल का जिक्र किया गया है वहाँ पर यह खेल बतलाया गया है कि चंद ऐसे खेल हैं जो जानवरों की मदद से खेले जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा खेल है जो जानवर की मदद से खेला जाता है। तो हमारा जवाब ये रहेगा और हमें यही बताया गया है आंसर यानी बुक में कि जो जानवर की मदद से खेल खेला जाता है उसका नाम है पोलो खेल। और ये खेल घोड़े पर सवार होकर खेला जाता है। या फिर सवाल ऐसा भी किया जा सकता है कि घोड़े पर सवार होकर कौन सा खेल खेला जाता है, तो उसका भी हमें यही जवाब देना होगा कि पोलो खेल है जो घोड़े पर सवार होकर खेला जाता है। और इससे तीसरा सवाल ये भी निकल कर आता है, पोलो खेल में जो खिलाड़ी घोड़े पर बैठकर गेंद को मारता है उसको क्या कहते हैं। तो हमारा वहाँ पर जवाब यही रहेगा और यहाँ पर हमें बुक में भी यही बताया गया है कि उसका नाम पोलो स्टिक। अब अच्छे से जहन में रखें कि एक ऐसा खेल है जो घोड़े पर यानी जानवर पर सवार होकर खेला जाता है और उस जानवर का नाम घोड़ा है और उस खेल का नाम पोलो है, और गेंद को जिससे मारा जाता है उसको पोलो स्टिक्स या मिलिट कहते हैं। सबक आओ खेले में ये बहुत ही अहम पॉइंट्स है, आप इसको नोट करके रखें। और हमारा आखिरी सबक है इस वीडियो का, जानवर और इनकी पनाहगाहें। वैसे तो बहुत सारे जानवर अपनी रहाइशगाहें बहुत अलग अलग तरीके की रहती है, अलग अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन इस सबक में जो बताया गया है खुसूसन इस सबक में ज़मीन पर रहने वाले और पानी में रहने वाले जानवरों का तज़किरा किया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्त इस बात को जानते हैं कि ज़मीन पर कौन से जानवर होते हैं और पानी में कौन से जानवर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अहम पॉइंट्स निकल कर आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सवाल इस तरीके का हो सकता है, ज़मीन और पानी में रहने वाला जानवर कौन सा है, उसको हम जलथलिया कहते हैं। इसका भी जवाब बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि ज़मीन पर और पानी में रहने वाले जानवर देखें, मेंढक, केचुआ, मगरमच्छ और खेकड़े, ऐसे जानवर जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। और इस सबक में जो अहम पॉइंट्स है वो ये भी है, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। ये बहुत ही जनरल नॉलेज कहिए, आम मालूमात कहिए, ये सबको ही मालूम है कि मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी लायक हो सकती है। उसका जवाब यही रहा कि मलेरिया। उसके साथ साथ में ये भी बतलाया गया है कि मच्छरों की अफजाइश कैसे होती है, हमारे अतराफ व अकनाफ में साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ये तमाम चीज़ें सबक में बताई गई है। उसके साथ साथ में यानी जो पानी गड्ढे में कहिए या फिर कहीं पर पानी ठहरा हुआ है उससे मच्छर की अफजाइश होती है। तो हमें ऐसे पानी पर, यहाँ पर पानी ठहरा हुआ हो, वहाँ पर कौन सी दवा का छिड़काव करना चाहिए। बहुत ही अहम पॉइंट्स है। मच्छर को मारने के लिए या फिर मच्छर को मारने के लिए ठहरे हुए पानी में कौन सी कीमियाई अशिया का छिड़काव करना चाहिए, ये सवाल पूछा जा सकता है। बहुत ही अहम पॉइंट्स है। तो उसका जवाब देखें,
क्रोसिन या मलाथियन, जो मच्छर के मारने ठहरे हुए पानी में इसका छिड़काव किया जाता है। उसके साथ साथ में यहाँ पर मक्खियों के बारे में भी जिक्र किया गया है। मक्खियों के जरिए बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया जो हमारी ग़िज़ा में शामिल हो जाते हैं और ये ग़िज़ा को आलूदा कर देते हैं, तो इसकी वजह से फैलने वाली बीमारियां कौन सी है, यानी मक्खियों के ज़रिए फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो जवाब ये है हमारा टाइफाइड, हैज़ा, ऐसी बीमारियां फैलती हैं। तो दोस्तों ये थे वो अहम पॉइंट्स। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो, यही अहम नुकात हो। अगर आप ज़रूरी नहीं है कि इसमें से ही सवालात किए जाएं। अगर आपकी नज़र में कोई और अहम पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो जो हमारी रहेगी पत्तों से ताल्लुक़, तो हमने पिछली वीडियो में आपके सामने बयान किया और हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ में पाए जाने वाले पौधे इसके बारे में भी बयान किया था। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे ग़िज़ा जो हम खाते हैं, उसके साथ साथ में दूसरे सबक को भी जोड़ लेंगे, ग़िज़ाई आदतें। जितना जल्दी हो सके हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो जमात सुवम की है उसको हम जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जमात चाहरुम और जमात पंजुम की माहौलियाती मुतालिए से बहुत सारे सवालात किए जाते हैं जो बहुत ही मायने रखते हैं। तो हम यही कोशिश करेंगे कि जमात सुवम की माहौलियाती मुतालिए के तमाम असबाक के अहम पॉइंट्स आपके सामने रखें। तो चलिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अहम है उन तलबा और तालिबात के लिए, उन दोस्तों के लिए जो TS टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में 4 असबाक के बारे में, यानी 4 असबाक के जो भी अहम पॉइंट्स है उसके बारे में हम आपको बतलाएंगे। 4 असबाकों में से दूसरे असबाक का जब मैं ज़िक्र करूँगा बहुत ही अहम होगा, और चौथे असबाक का जो अहम पॉइंट्स है वो आपको याद रखना बेहद ज़रूरी होंगे। दोस्तों अगर आप पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो 2 वीडियोस देखें, क्योंकि TS टेट 2017 में उन असबाकों में से कई सवालात किए जा चुके हैं, उनके अहम पॉइंट्स उस वीडियो में बतलाए गए हैं। जो कि पहला सबक है ख़ानदान, दूसरा सबक कौन क्या काम करते हैं, तीसरा सबक आओ खेलें, और चौथा सबक जानवर और इनकी पनाहगाहें। ये पार्ट 2 वीडियो के अंदर है, और पार्ट 1 में हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ में पाए जाने वाले पौधे, और छठा सबक जो पत्तों से रिश्ता है, जो अहम पॉइंट्स है पार्ट 2 में बतलाए गए हैं। तो आप दोस्तों अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, क्योंकि बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों आज हमारे सामने जो पहला सबक है ग़िज़ा जो हम खाते हैं, यानी जमात सुवम से ये 7वां सबक, इस वीडियो का पहला सबक, और 8वां सबक है जमात सुवम से ग़िज़ाई आदतें, 9वां सबक है हमारा गांव, 10वां सबक है मुख्तलिफ़ अक़साम के मकानात। दोस्तों आपसे मैं पहले ही ये कह चुका हूँ कि 7वां जो सबक है उसमें अहम पॉइंट्स उतने नहीं दिए गए हैं जो हमें याद रखे जाएं या फिर याद रखने के काबिल हों, लेकिन फिर भी आपको अगर 7वें सबक से, यानी ग़िज़ा जो हम खाते हैं सबक है, अगर उसमें से कोई अहम पॉइंट दिखता है तो आप हमें कमेंट सेशन में बता सकते हैं। उस सबक में बस यही बतलाया गया है कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो कहाँ से हासिल होती है। ग़िज़ा जो हासिल होती है, कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो पौधों के ज़रिए हासिल होती है और कुछ जानवरों के ज़रिए हासिल होती हैं, और चंद ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो पकाकर खाई जाती हैं, और चंद ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो बग़ैर पकाई खाई जाती हैं। पकाकर खाने वाली ग़िज़ा आप जानते हैं और पकाने की वजह भी आप जानते हैं, और सबक में भी यही बताया गया है कि पकाकर खाने से ग़िज़ा मुलायम होती है और ज़ायक़ेदार होती है। पकाई हुई ग़िज़ा आसानी से हज़म होती है। बस यही पॉइंट्स हैं जो 7वें सबक में दिए गए हैं। तो दोस्तों 8वें सबक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें।
जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि 8वां जो सबक है वो बहुत ही अहम है। 8वां जो सबक है हमारा ग़िज़ाई आदतें। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन से अहम पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अहम पॉइंट्स है, आप अच्छे से इसको जहन में रखें। इलाक़ाई एतबार से इलाक़े के हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान पकाए जाते हैं, ग़िज़ाई आदतें होती हैं। तो यहाँ पर रियासत तेलंगाना में ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसका ज़िक्र हमारी माहौलियाती मुतालिया तीसरी जमात की किताब में किया गया है। वो हमें जहन में रखना होगा कि यहाँ पर ज़्यादा कौन सी डिश फेमस है यानी खाई जाती है ग़िज़ा के तौर पर। तो माहौलियाती मुतालिए की किताब में सबसे पहले निज़ामाबाद का ज़िक्र किया गया है। और दोस्तों आपको ये बात भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस इलाक़े में ज़्यादा जिस फसल की पैदावार होती है उसका वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है यानी ग़िज़ा के तौर पर। तो देखें निज़ामाबाद में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, ये हमें सवाल पूछा जा सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। निज़ामाबाद में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब रहेगा, और हमें किताब में यही बताया गया है, बाजरे की फसल। बाजरे की फसल की काश्तकारी निज़ामाबाद में ज़्यादा की जाती है। दोस्तों यहाँ पर हम रियासत की बात कर रहे हैं और वो भी हमारी रियासत की। ये रहा हमारा पहला सवाल, और कई तरीक़े से सवाल किए जा सकते हैं। सवाल ऐसे भी हो सकता है, बाजरे की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? पहला सवाल आपने देखा कि निज़ामाबाद में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, तो हमारा जवाब रहेगा बाजरा। अब यहाँ पर सवाल ऐसे भी हो सकता है, बाजरे की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो हमारा जवाब रहेगा निज़ामाबाद। सवाल पूछने के कई तरीक़े होते हैं, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखें इस तरीक़े से भी सवाल किया जा सकता है, निज़ामाबाद में ज़्यादातर लोग किस चीज़ को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? तो हमारा जवाब रहेगा बाजरे की रोटियां। सवाल इस तरीक़े से भी हो सकता है, बाजरे की रोटियां इस ज़िले में ज़्यादातर लोग अपनी ग़िज़ा की तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जवाब रहेगा वहाँ पर निज़ामाबाद। यानी सवाल पूछने के कई तरीक़े होते हैं। सबसे पहले हमें सवाल समझना चाहिए, उसके बाद हमें जवाब देना होगा। उसके बाद देखें दूसरा सवाल। इस सबक से दूसरा सवाल ये निकल कर आता है, करीमनगर में ज़्यादा कौन सी फसल की काश्तकारी की जाती है? मैंने पहले ही आपसे कहा कि इस माहौलियाती किताब यानी मुतालिए की किताब में 4 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताया गया है। पहला डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद के बारे में हम जान चुके हैं कि कौन सी काश्तकारी की जाती है और वहाँ पर कौन सी डिश का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखें करीमनगर में ज़्यादा कौन सी फसल की काश्तकारी की जाती है? तो हमारा जवाब रहेगा करीमनगर में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की काश्तकारी की जाती है उसका नाम रहा, आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, धान। या फिर सवाल इस तरीक़े से भी हो सकता है, धान की फसल यहाँ पर ज़्यादा की जाती है, या फिर धान की फसल रियासत तेलंगाना में इस ज़िले में ज़्यादा की जाती है। तो हमारा जवाब रहेगा करीमनगर। उसके बाद देखें तीसरा सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें या फिर नोट करके रखें। रागी की पैदावार इस ज़िले में ज़्यादा की जाती है, या फिर रागी की काश्तकारी इस ज़िले में ज़्यादा की जाती है? तो ज़िले का नाम देखें यहाँ पर रंगारेड्डी। या फिर सवाल इस तरीक़े से भी हो सकता है, रंगारेड्डी ज़िले में इसकी पैदावार ज़्यादा की जाती है या फिर काश्तकारी ज़्यादा की जाती है?
तो हमारा जवाब रहेगा रागी। उसके बाद सवाल इस तरीके से भी हो सकता है, रंगारेड्डी के लोग यानी ज़िला रंगारेड्डी के लोग अपनी ग़िज़ा में इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जवाब रहेगा रागी, और इससे अम्बेल बनाया जाता है और इसको पिया जाता है। आप अच्छे से जहन में रखें, रागी से अम्बेल बनाया जाता है। सवाल ये भी हो सकता है कि रागी से क्या बनाया जाता है, तो उसका जवाब रहेगा अम्बेल। उसके बाद देखें यहाँ पर सवाल निकल कर यही आता है, जो चौथा सवाल समझे, ज़िला महबूब नगर में ग़िज़ा के तौर पर इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ज़िला महबूब नगर में दरियाए कृष्णा बहुत ही करीब है, इसलिए वहाँ के लोग मछली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उन्हें ज़्यादा मकदार में मछली दस्तयाब रहती है। पांचवा सवाल देखें। अब ये तो इलाक़े में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जो जंगलाती इलाक़े में लोग रहते हैं वो कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जवाब रहेगा जामुन, आमला, जाम। इस चीज़ का इस्तेमाल जंगलाती इलाक़े में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। ये थी हमारी रियासत तेलंगाना की फसलें जो ज़्यादा तौर पर जिनकी काश्तकारी की जाती हैं। उसके बाद हमारी रियासत के अलावा माहौलियाती मुतालिया तीसरी जमात की किताब में दूसरी रियासतों के बारे में भी ज़िक्र किया गया है। ये बहुत ही अहम है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें क्योंकि ये बहुत ही अहम पॉइंट्स है। यहाँ से ये सवाल निकल कर आता है कि जिस तरीके से रियासत तेलंगाना में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में यानी ज़िले में अलग अलग तरीके से फसलें उगाई जाती हैं, फसलों की काश्तकारी की जाती हैं और अलग अलग डिशेस का इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से दूसरी रियासतों में कौन सी फसलें उगाई जाती है उसके बारे में इस सबक में ज़िक्र किया गया है। तो सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है, रियासत राजस्थान में इसकी फसल ज़्यादा होती है, यानी राजस्थान एक रियासत है, जिस तरीके से तेलंगाना रियासत में डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरीके से फसलें उगाई जा रही है, उसी तरीके से रियासत राजस्थान में इसकी फसल ज़्यादा होती है, यानी जिसकी फसल काश्तकारी ज़्यादा की जाती है वो कौन सी है। तो हमारा जवाब रहेगा, और हमें किताब में यही जवाब बताया गया है, जवार की फसल राजस्थान में ज़्यादा की जाती है। या फिर सवाल इस तरीके से भी हो सकता है, जवार की फसल किस रियासत में ज़्यादा की जाती है, तो हमारा जवाब यही रहेगा रियासत राजस्थान। या फिर सवाल इस तरीके से भी हो सकता है, जवार की रोटी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इस रियासत में किया जाता है, तो ऑप्शंस में 3 कोई और रियासतें दी जाएं और वहाँ पर आपको राजस्थान नज़र आए तो सबसे पहले आप राजस्थान को ही चॉइस करेंगे क्योंकि हमारा सही जवाब वही रहेगा। उसके बाद यहाँ से ये सवाल निकल कर आता है, गेहूँ की जो काश्तकारी की जाती है वो कौन सी रियासत में की जाती है। वैसे तो गेहूं की काश्तकारी हर रियासत में की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूं की जो काश्तकारी की जाती है वो कौन सी रियासत में की जाती है। तो यहाँ पर एक रियासत नहीं है बल्कि रियासतों कह सकते हैं। हमारा जवाब रहेगा दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। इन रियासतों में गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है, यानी गेहूं की ज़्यादा काश्तकारी होती है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी नाम का लिया, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, इन रियासतों में गेहूं की रोटी और गेहूं की पूरियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखें, इस सबक से सवाल ये निकल कर आता है, चावल का इस्तेमाल इन रियासतों में ज़्यादा किया जाता है।
चावल का इस्तेमाल इन रियासतों में ज़्यादा किया जाता है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऐसा भी कंफ्यूज करने के लिए जाता है ए और बी और सी, या फिर इन तीनों में तीनों सही है। तो आप अच्छे से जहन में रखें, चावल की जो ज़्यादा काश्तकारी की जाती है वो जुनूबी रियासतों में ही की जाती है, जिसमें हमारी रियासत तेलंगाना का भी शुमार होता है। देखें नाम, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला, इन रियासतों में चावल की ज़्यादा काश्तकारी की जाती है। तो दोस्तों ये रहे वो अहम पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी तवील हो रही है, इसलिए हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले वीडियो में हम 2 असबाब जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।